एंड आई एम टेलिंग यू, इंडिया में लोगों को स्टॉक मार्केट को लेके ऐसी मिसकंसेप्शन है ना कि कुछ जादू का खेल चल रहा है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो जब हम सीएफए करते हैं तो वहां पे थंब रूल पढ़ते हैं कि 120 माइनस योर एज, दैट इज हाउ मच यू शुड एलोकेट टू इक्विटी। सो मैं हमेशा Wow. बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट अभी उस टाइम पे है जहां पे यूएस मार्केट इट यूज टू बी इन 1960s और 70। उसका एक रीजन ये रहा है कि हिस्टोरिकली अगर आप लास्ट 5-10 साल के आईपीओ देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द आईपीओ वर प्रॉफिटेबल एंड वर लाइक ह्यूज लिस्टिंग्स, 100% गेन, 200% गेन फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? तो लोगों के माइंड में एक वो चीज बैठ गई है कि आईपीओ मतलब गारंटेड प्रॉफिट। इज द इजीएस्ट ट्रिक। सिंपली फॉलो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी वहां पैसा डाल दो, you'll end up earning better money than random investing. That is my surety on that, right? And Hello everyone, नमस्ते, वेलकम, सुस्वागतम, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस एक्सपर्ट टॉक शो एपिसोड नंबर 158 में। टुडे वी विल हैव आकाशदीप ग्रोवर who will speak on stocks and stories from pocket to portfolio. He will share his real life knowledge on how one can be successful in stock market, what to do, what not to do, and so many uh, tips and guidance and real life stories. So stay tuned. We will have Akashdeep on the podcast very soon. But before that, do subscribe our YouTube channel, Vipul the Wonderful, and press the bell icon to get our regular updates, to watch our earlier podcast episodes, and do share with your friends and family. And बस हम ऐसे ही experts को बुलाते रहेंगे every week. So it's time to invite our expert Akashdeep on this podcast. Let's welcome our expert of the day, Akashdeep, and learn and get insights from him about the stock market stories and real life examples and how we can get the best from the stock market. So let us welcome our expert of the day. Hey hi Akash, Vipul, welcome on the show. thank you so much for Hi, having me. thanks to you for accepting our invitation and joining on this podcast. So we would love to hear from you about your real life experience and stories about what what is stock market, how one should focus on it, what क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. So we will surely would love to know your real life experience from the stock market. So thank you for accepting our invitation, and let us start the session uh, with your small intro. Please let us know what you are doing and how you decided to get entry into this industry, because लोग डरते हैं इंडस्ट्री में, मतलब बोलते हैं कि ये बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री है, एंड आफ्टर दी सीरीज ऑफ स्कैम लोग और भी डर रहे हैं. तो प्लीज टेल अस अबाउट योर स्टोरी एंड टू बिगिन विद. Definitely. Thank you so much, Vipul, for giving me opportunity to be here. I'm really, really obliged. And yes, stock market एक बहुत fun and everybody says कि gambling game है. So we'll definitely make it interesting. We'll try कि हम इसके बारीक से बारीक चीज़ों को, nuances को discuss करेंगे. And जो भी इसको सुन रहा है, hear till in that and in the end, and I think definitely you'll gonna learn something, right? And I'll start with my introduction. So I'm Akashdeep Grover by qualification. I'm a chartered accountant and CFA charter holder. I'm a SEBI registered RIA research analyst as well. And just caveat जो भी हम यहाँ पे discuss करेंगे regarding stocks, we'll be taking a lot of stock names. So don't consider it as an advice to buy or sell, just a caveat, right? And I have over a decade of experience into stock market. I've been working with companies like EY and others, right? So जहाँ पे हम companies को discuss करते थे, detail में पढ़ते थे. So I'll try to share my experience कि आप real life में stock market को कैसे देख सकते हो. And when it comes to my journey into stock market, it started with जब मैं बहुत छोटा था. I was pursuing CA, अपनी articleship कर रहा था. उससे पहले से I was interested into that. So I used to listen to that जब मेरी stipend money आनी शुरू हुई. Then I started investing into that, and there are a lot of lessons that I've learned from there that I would like to share with you, right? So we'll definitely try to make it interesting and insightful for everyone. Yeah, let's hope for the best. Yes, Akashji, thank you for your introduction. That was amazing.
would love to know more from you. So moving on with the very first question, how does stock market works? Very very basic question, and to a layman's question I will say. So this is very basic, but this is very crucial. एंड आई एम टेलिंग यू, इंडिया में लोगों को स्टॉक मार्केट को लेके ऐसी मिसकंसेप्शन है ना कि कुछ जादू का खेल चल रहा है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? मैं आपको बहुत इजी वे में और रियलिस्टिकली समझाता हूँ स्टॉक मार्केट होता क्या है, राइट? स्टॉक मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट, सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट, राइट? प्राइमरी मार्केट में जो भी आईपीओज आते हैं, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक जा रही है, दैट इज कमिंग एज अ प्राइमरी मार्केट, जिसमें आईपीओ या एक एफपीओ होता है, फॉलो ऑन ऑफरिंग, राइट? सो दैट इज आईपीओ का छोटा भाई। तो आईपीओ एंड एफपीए, जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है लोगों से डायरेक्टली, दैट इज कमिंग एज इनटू प्राइमरी मार्केट। उसके बाद देयर इज सेकेंडरी मार्केट, जब एक स्टॉक लिस्ट हो चुका है, नाउ वी आर बाइंग एंड सेलिंग उसको, तो दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सो मेजोरिटी ऑफ द मार्केट इज कमिंग एज सेकेंडरी मार्केट ओनली। सेकेंडरी मार्केट को समझने के लिए सिंपल सब्जी मंडी का एग्जांपल लेते हैं, राइट? एंड एज माय नीश इज लाइक एक्सप्लेनिंग टफ टर्म्स इन सिंपलेस्ट टर्म्स, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। अब मार्केट में फ्रूट्स लेने गए, केले लेने गए, यू सी नवरात्रि के टाइम पे फ्रूट्स के भाव बढ़ जाते हैं, केले के प्राइस यू ऑलवेज सी दे हाँ, डबल ट्रिपल। नवरात्रि के टाइम पे, रमजान के टाइम पे तो या मतलब प्राइसिंग बहुत बढ़ जाते त्योहारों हैं। के ट्रू। टाइम पे, यस, एट द टाइम हाँ, ऑफ इनफैक्ट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के टाइम पे बहुत प्राइस बढ़ जाते हैं। ट्रू 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 डेफिनेटली। ट्रू एंड इफ यू ट्राई टू एनालाइज के क्यों बढ़ते हैं, दैट इज बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट? ट्रू सो ट्रू। स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट इज ऑल प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है, जिस स्टॉक की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, राइट, उसका प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई क्योंकि लिमिटेड है, राइट, देयर आर लिमिटेड इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। सो और जिसकी डिमांड कम होगी, स्टॉक प्राइस गिरेगा। अब वो डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, देयर आर लोड ऑफ फैक्टर्स टू एक्सप्लेन दैट, उसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली सब्जी मंडी जैसा ही है स्टॉक मार्केट, सिंपलेस्ट भाषा में समझो, कोई जादू की दुकान नहीं है कि पैसा 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी फंडामेंटल एंड एनालाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंगली कि किसकी डिमांड बढ़ने वाली है, राइट? So that is all about stock market. Understand primary market, think about secondary market, and you'll understand कि stock market होता क्या है। Well explained. You gave the basic and very real life example कि fruits के price कैसे बढ़ते हैं। That really एकदम सटीक तरीके से समझाता है what is stock market. So why should I invest in stock market? लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है आपको, इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा। कुछ लोग जो एकदम सेफर साइड चलते हैं वो एफडी की बात करते हैं, कुछ गोल्ड की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं। सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? मैं अगर मेरे आपसे पूछूं कि मुझे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो व्हाट विल बी योर आंसर टू दिस? अगेन बहुत सिंपल बट बहुत प्रेवलेंट क्वेश्चन, लोगों को समझ नहीं आती। इनफैक्ट जो लास्ट 99% ऑफ पीपल दे विल से अरे बढ़ेगा, ऐसा होगा, स्टॉक मार्केट में तो करना ही चाहिए, और सब मिल से कि अरे बहुत रिस्क है, अवॉइड करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि बढ़ेगा क्यों, राइट? इफ वी से कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंड मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हर चीज को डेटा बैक उसको एनालिसिस करके दूं, राइट? तो यू नो स्टॉक मार्केट बेसिकली इज वेरी मच कोरिलेटेड टू इंडियाज इकोनॉमी, राइट? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को जो बैरोमीटर होता है, दैट इज स्टॉक मार्केट, राइट? उसको मेजर करता है। सो वी ऑल नो कि अगर एक इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसकी स्टॉक मार्केट भी अकॉर्डिंगली ही ग्रो करेगी। एंड लेट्स नॉट टॉक हवा में बात नहीं करते, मैं आपको एग्जांपल एक डेटा शेयर करके दिखाता हूँ। पीपल जी अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू वन यस, डेटा। यस प्लीज। यस, वी कैन यस, तो सी योर एक ये स्क्रीन। लाइव चार्ट है, राइट? इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ यूएस का S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है, और इंडिया का निफ्टी, राइट, जो कि स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू विल सी, हर कोई बोलता है अरे निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है इंडियन स्टॉक मार्केट को। यू विल सी द रेड लाइन इज S&P 500 SPX, एंड जो ऊपर वाली लाइन है दैट इज निफ्टी, राइट? तो लोगों को लगता है अरे निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है, यूएस इतना बड़ा मार्केट है, निफ्टी स्टिल उसके ऊपर चल रहा है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि दैट इज ओनली पार्ट ऑफ द पिक्चर दैट वी आर सीइंग। लेट मी जूम आउट द चार्ट, क्योंकि इसमें डेटा बहुत अच्छा अवेलेबल है, राइट? एंड यू विल सी, अभी आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी कहाँ स्टैंड कर रहा है, राइट? यूएस वाह, मार्केट को अगर हम देखते हैं तो इंडियन मार्केट इज जस्ट बेबी इन फ्रंट ऑफ यूएस मार्केट, और लोगों को लगता है कि इंडिया ने आउट परफॉर्म कर दिया है, राइट? सो मैं वाह। हमेशा बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट अभी उस टाइम पे है जहां पे यूएस मार्केट
इट यूज टू बी इन 1960s और 70s, राइट? उसके बाद उनका मार्केट बूम होना शुरू हुआ, राइट? एंड यू सी S&P 500 कितना ग्रो करा है, एंड यू कैन कंपेरेटिवली सी कि निफ्टी अभी कहाँ तक पहुंचा है. एंड लेट्स, दिस इज नॉट ओनली द पिक्चर, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन जहाँ पे वी कैन शो यूएस और इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ कैसे है. वी ऑल नो, राइट, कि इंडिया का जीडीपी, इट हैज क्रॉस्ड अराउंड 4 trillion economy, right? And US at the same time is 30 trillion economy, right? But अगर आप राइट, इसको देखोगे तो you will see around 1970 or 80s you'll find US economy has crossed 4 trillion, right? 4 राइट, trillion के बाद it took like कितना 40 years approximately to reach 30 trillion, and हम already बात कर रहे हैं कि इंडिया विकसित भारत बनेगा 2047 तक, इंडिया विल बी अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी और 20 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट? दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. तो अभी इंडिया का वो फेज आना बाकी है, दैट द सुपर एक्सप्लोसिव हाई ग्रोथ पीरियड. तो जब राइट. इंडिया का जीडीपी विल रीच से 30 ट्रिलियन इन नेक्स्ट से 20 इयर्स 30 इयर्स बाय 2047 तक जब भी आएगा, राइट? तो आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि जब यूएस रीजन फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 30 ट्रिलियन तो उसका स्टॉक मार्केट कैसे जंप किया. एंड नाउ वी आर एट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट. मार्केट इज रिस्की इनहेरेंट, सबको पता है, बट द लॉन्ग टर्म स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज लाइक गोल्ड. सो प्रॉब्लम यही है कि सभी को शॉर्ट टर्म में ही मल्टीप्लाई करना है. दैट इज द इशू. व्हाट आई फील, आपने जो एग्जांपल बताया उससे वही लग रहा है मुझे. व्हाट डू यू से? डेफिनेटली ये एक मिसकंसेप्शन है. लोगों को लगता है शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनता है बिकॉज समहाउ पैसा अपफ्रंट दिखता है, राइट? एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ वीक पैसा आ रहा है. बट फॉर माई पर्सनल अकाउंट, जिन स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टिंग में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड दैट पीरियड, तो उसने मेरे को इतना ज्यादा रिटर्न दिया है, लाइक शॉर्ट टर्म रिटर्न इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और समथिंग, आई एम जस्ट सेइंग देयर आर टू डिफरेंट गेम्स. अगर किसी को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, देन लॉन्ग टर्म में तो सबको इन्वेस्ट कर सकता है ना, हर कोई स्टॉक एडवाइस लेके या खुद ब खुद रिसर्च करके पिक कर सकता है. तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है. अगर आप इंडिया की इकोनॉमी में अगले 30 साल तक बने भी रहोगे ना विदाउट डूइंग एनीथिंग, आई थिंक इट्स गोना डू वंडर्स. इट विल गिव यू मल्टीफोल्ड रिटर्न्स. डेफिनेटली, एंड आई हैव प्रूवन दैट बाय डेटा, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर कि अच्छा ऐसा होगा, यस, यस, यू assumptions है, शोन द राइट? रियलिस्टिक पिक्चर कंपैरिजन के साथ एग्जैक्ट कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. तो वी एग्जैक्ट कैन से कि जो जो यूएस डाउन द लाइन 30 इयर्स था, अभी वो जगह पे इंडिया का मार्केट है, तो वहाँ वो हम जो कर्व का जो अप कर्व देख सकते हैं, हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो द नेक्स्ट टाइम एवरीबॉडी आस्क कि स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ेगा, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट डेटा, राइट, रेदर देन टॉकिंग हाइपोथेटिकली अबाउट दैट. तो आपने बिल्कुल सही बताया, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. यस. हाउ मच बिगिनर शुड इन्वेस्ट. बिगिनर को, मुझे एज ए, मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, अगर मुझे स्टार्ट करना हो तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए? विपुल, मैं क्या? इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ, थंब रूल बताता हूँ, राइट? अगेन जब आप एक्चुअल में जाओगे तो इट्स बेस्ड ऑन रिस्क कैपेसिटी, कितना टाइम होराइजन, एवरीथिंग, बट एक थंब रूल देते हैं, राइट, जस्ट फॉर बेसिक गाइडेंस. सो जब हम सीएफए करते हैं तो वहां पे थंब रूल पढ़ते हैं कि 120 माइनस योर एज, दैट इज हाउ मच यू शुड एलोकेट टू इक्विटी, राइट? अब इक्विटी कुड बी आपका म्यूचुअल फंड आ गया, डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हो, ईटीएफ्स खरीद रहे हो, राइट? स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर आपका जितना, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, उसमें 120 माइनस योर एज, राइट? आई एम 30, राइट? सो 120 माइनस 30, 90% ऑफ माई एलोकेशन शुड बी इनटू स्टॉक मार्केट, इक्विटीज, ब्रोडर म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग. बाकी 10% डेट, एफडी कहीं मैं और रख सकता हूँ. सो दैट इज द बेसिक थंब रूल, राइट? थोड़ा कंजर्वेटिव ले तो आई वुड से 100 माइनस 30. इंडियन मार्केट थोड़ी सी रिस्की है एज वी कंसीडर, तो 100, टेक 100 माइनस योर एज, राइट? दैट इज अ थंब रूल टू हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज. बिकॉज इसका एक रीजन है, द यंगर यू आर, आपका टाइम होराइजन उतना ज्यादा है, आपके पास उतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सो यू गेट बेटर चांस टू गेट रिटर्न आउट ऑफ स्टॉक मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पर्सन ऑफ से 70 years ऑफ एज, अब वो 100% इक्विटी में नहीं डाल सकते, राइट? स्टॉक मार्केट इज रिस्की, तो उनको डेट में, एफडीज में और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए. बट दैट इज द बेसिक थंब रूल, 120 माइनस योर एज इज व्हाट आई फॉलो. और इफ यू आर कंजर्वेटिव, अब थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हो तो 100 माइनस योर एज. एंड आई थिंक
that helps a lot of people. That will help a lot of people to understand कितना So, invest करें. so if we compare stock market with gold or silver or mutual fund, so what is your tips or ideas on that? Okay. So जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड और सिल्वर, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड का भी ईटीएफ है, सिल्वर का भी ईटीएफ है, तो अल्टीमेटली द मनी इज इनटू लाइक दिस डिजिटल काइंड ऑफ Digital, मनी, yeah, राइट, दैट इज Demat का, yeah. डीमैट में है, एग्जैक्टली दैट्स द राइट वर्ड. तो इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देयर शुड ऑलवेज बी अ पोर्टफोलियो, राइट. मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज डाइवर्सिफाई, इवन इन विद इन इक्विटी यू नीड टू डाइवर्सिफाई. इतना मेरे को से फॉर एग्जांपल ईटीएफ्स में करना है, गोल्ड ईटीएफ्स में, इतना लार्ज कैप में करना है, दिस इज समथिंग आई नीड टू एलोकेट टू स्मॉल कैप्स. सो आपको इसको एक थाली की तरह लेना है, खाने की थाली होती है ना, तो आई कॉल इट बूफे रूल, राइट. हमेशा एक बूफे बनाओ. सो देयर इज मेन कोर्स, राइट, दाल चावल रोटी जो भी आप खाते हो, एंड देन देयर इज सम स्नैक्स, एपेटाइजर्स आप लेते हो कुछ फास्ट फूड टाइप, एंड देन देयर इज मीठा, राइट, डेजर्ट. तो हर एक का है. तो आप जितना मर्जी डेजर्ट खा लो, आप जितना मर्जी स्नैक्स खा लो, बट जब तक आप दाल रोटी नहीं खाओगे ना, तो आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, राइट. दैट्स द बेसिक रूल. आप कितने दिन खा सकते हो. सो True. दैट इज दैट पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो जिसको हम लार्ज कैप या क्वालिटी मिड कैप बोल सकते हैं, जिसमें आपको सेफ्टी मिलेगी. मैं उसको बोलता हूँ दैट इज योर लाइक मेन कोर्स मील, दाल रोटी चावल जो भी आप डेली रूटीन में खाते हो, राइट. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी थाली में कितना मेन कोर्स रखना है, कितना स्नैक्स रखना है और कितना मीठा रखना है. एंड दैट एलोकेशन चेंजेस फॉर एवरीबॉडी, हर किसी को अपने हिसाब से करना है. बट यू शुड नेवर डू कि मेरे को सारा का सारा एक ही स्टॉक में डाल देना है या एक ही तरीके के स्टॉक्स में डाल देना है, True. राइट. सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, एंड उसमें कितना कितना एलोकेशन रहेगा दैट यू एलोकेट. एंड नाउ So, जस्ट अनदर पॉइंट बिफोर वी जंप ऑन, ये रोटेशन चलता रहता है, राइट. यू टॉक अबाउट गोल्ड और सिल्वर. एक्चुअली मैं आपको सही स्टोरी बताऊं विपुल जी, कोई गोल्ड सिल्वर की बात भी नहीं करता था आज से कुछ साल पहले तक, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ true, व्यू से. true, एवरीबॉडी इज true. लाइक कि हाँ ये घर वालों ने ले रखा है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है. बट लास्ट 2-3 years में जितना गोल्ड सिल्वर ने रिटर्न दिया, तो एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोल्ड और सिल्वर, राइट. Very true. तो इट्स अबाउट रोटेटिंग द मनी. मेरा पर्सनल रूल है, जब मेरे को लगता है कि निफ्टी या स्टॉक मार्केट जो है दैट हैज रीचन दैट लेवल, जो दैट हैज रीच दैट लेवल कि वो अपनी फेयर वैल्यू को एक्सीड कर चुका है, राइट. एट दैट टाइम मैं उसके फंड्स मूव करके आई मूव इट टुवर्ड्स गोल्ड, सिल्वर, डेट या अदर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में इक्विटी के थोड़ा सा बाहर उसको मूव कर देता हूँ. एंड व्हेन आई थिंक अच्छा नहीं अभी मार्केट क्रैश हुआ है, थोड़ा डाउनफॉल है, थोड़ी करेक्शन है, तब मैं उसके फंड्स उसको वापस कर देता हूँ. देयर इज नो फिक्स रूल. एवरी टाइम यू हैव टू सी इस टाइम पे क्या सही है, मेरे को कितनी एलोकेशन कहाँ पे रखनी है, कितने फंड्स कहाँ मूव करने हैं. तो वो स्विच ओवर या जो डाइवर्सिफाई करते रहना, और वो मतलब उसको यू नीड एक्सपर्ट, आई विल से फॉर दिस, बिकॉज एज अ लेमैन आप अपने बिजनेस पे फोकस करोगे या इस पे फोकस करोगे? व्हाट डू यू से? सो इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, राइट. पहले जमाने में यू हैव हर्ड ऑफ पीपल करे दो स्टॉक्स बता दो लाइफ टाइम चलते रहे, बस 10 साल बाद देखे. आई थिंक दैट वो पीरियड खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका राइट. है। आज की डेट में आप दो स्टॉक में करके इन्वेस्ट करके छोड़ोगे ना, वो मिलेंगे ही नहीं 10 साल बाद, आपको वेरी पता ट्रू, भी नहीं लगेगा कहाँ गए हैं, वेरी राइट. ट्रू, वेरी ट्रू। अभी इतना इंफॉर्मेशन है, इतना वोलेटाइल हो गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, यू ऑलवेज हैव टू कीप अ ट्रैक कि कहाँ पे क्या चल रहा है. क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, देयर हैव बीन हमने सबने सुना, वी हैव टॉक्ड अबाउट ओला, राइट. ओला का आईपीओ आया, देन ओला का इशू हुआ, उसके शेयर प्राइस गिर गए. अगर आप उसको भूल के छोड़ गए होते तो आई थिंक यू वुड हैव लेफ्ट विद वेरी लेस अमाउंट, राइट. बहुत कम पैसे में आप होते. सो दैट इज नॉट अ वाइजर अप्रोच. आपको हमेशा एक उस पे नजर रखनी पड़ेगी, राइट. एंड एज यू आर सेइंग कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आई वुड सजेस्ट उसको दो अप्रोच में लेते हैं. एक पर्सन जिसको रिस्क नहीं इतना ज्यादा लेना, राइट, तो वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में जा सकता है जिसमें एक्सपर्टीज नहीं चाहिए. पैसिव इन्वेस्टमेंट मींस यू कैन गो फॉर ईटीएफ, राइट, और सम ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे आपका पैसा 100 या 200 स्टॉक्स में बांट दिया जाता है, राइट. तो आपका रिस्क नहीं रहता. जैसा इंडेक्स बढ़ेगा, कुछ स्टॉक गिर जाएंगे, कुछ स्टॉक बढ़ जाएंगे, बट यू विल एंड अप विद अ डिसेंट रिटर्न बेटर देन एफडी और समथिंग, ट्रू। राइट. बट
if you have good corpus, you have some time, you have interest into this, you should definitely go for direct investing. You can take advice from someone जो आपको advise करके कहाँ पे क्या करना है, आपके portfolio बना सकते हैं. So that totally depends upon your portfolio, your expectations from the stock market. But yes, you have to keep a track, right? अगर नहीं रख सकते तो simple passive investment में डाल के छोड़ दो and enjoy your life. तो जब जब आपने आईपीओ की बात बोली तो मन में एक ख्याल आया पेटीएम का आईपीओ, फिर अभी लास्ट में जो अभी आके गया आईपीओ, तो मीशो का लास्ट आईपीओ आया. तो मतलब व्हाट इज द अप्रोच, व्हाट शुड बी द अप्रोच? हम आईपीओ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईपीओ को लेके वो लोगों का क्या ओपिनियन होना चाहिए? क्योंकि आईपीओ में तो ग्रे मार्केट भी चलता है. आई हैव हर्ड कि कुछ लोग तो दे डोंट इन्वेस्ट इन आईपीओ बट दे रेंट देयर डीमेट अकाउंट्स फॉर आईपीओ. Yes, मतलब तो yes. ये मामला क्या है? मतलब क्या होना चाहिए? या एज एन एक्सपर्ट गिव योर इनसाइट ऑन स्पेसिफिकली आईपीओ बज या आईपीओ इनसाइड स्टोरी आई विल से. डेफिनेटली आईपीओ तो बज़वर्ड रहा है इंडियन मार्केट में. उसका एक रीजन ये रहा है कि हिस्टोरिकली अगर आप लास्ट 5-10 साल के आईपीओस देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द आईपीओस वर प्रॉफिटेबल एंड वर लाइक ह्यूज लिस्टिंग्स, 100% गेन, 200% गेन फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? तो लोगों के माइंड में एक वो चीज बैठ गई है कि आईपीओ मतलब गारंटेड प्रॉफिट, राइट? वो जो पिछले 10 साल का वो रेपुटेशन बनी हुई आईपीओ की, तो लोगों को लगता है ये तो श्योर श्योर प्रॉफिट ही है, राइट? बट रिसेंटली देयर वर आईपीओस जिसने ये पूरा का पूरा भ्रम तोड़ दिया है लोगों का. आई विल टेल यू, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, लाइक इसमें मैंने 30 आईपीओस लिए थे, स्टार्टअप आईपीओस, राइट? जोमेटो, स्विगी, नायका, मामा अर्थ. सो मैंने इनका एनालिसिस किया. यू विल फाइंड, you'll be surprised to see कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लिस्ट होने के बाद हाइप की वजह से उनका आईपीओ की लिस्टिंग गेन तो आ गया, बट उसके विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर बहुत सिग्निफिकेंटली लॉस पे चल रहे थे, ट्रू. बिकॉज वो हाइप जो है वो फेड अवे हो गया. एंड नाउ यू विल सी, काफी लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, बट अब आईपीओ लॉस में खुलने लग गए हैं, सब्सक्राइब नहीं होते, लिस्टिंग पे गेन पे लिस्ट होते हैं, कुछ टाइम बाद डाउन जाने लग जाते हैं. सभी जो आई टोल्ड यू को रेपुटेशन बना था आईपीओ का, दैट इज गोइंग डाउन, राइट? एंड दैट इज बाउंड टू हैपन. कुछ भी गारंटेड नहीं है, ट्रू. आपको चेंज होना पड़ेगा. अगर आप मेरे से रियलिस्टिकली पूछे क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज एवरी आईपीओ. आपको उसका देखना पड़ेगा कि वो कितने प्रीमियम पे आ रहा है, उसका क्या फंडामेंटल्स है, उसके पीयर्स किस वैल्यूएशन पे चल रहे हैं. डोंट फॉलो द हाइप. सीधी सी बात है कि सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं, राइट? आई डोंट बिलीव इन दैट. पर्सनली मैं आईपीओ में इन्वेस्ट ही नहीं करता, राइट? मेरे को लगता है कि ग्रे मार्केट प्राइसिंग सेक्टर भी बहुत काम करता है. आई डोंट नो व्हाट इज दैट बट वो yes, कुछ कुछ तो मतलब गिमिकिंग लगता है. बट यू अगेन it does. आपने जो बताया मेरा भी ओपिनियन वही है कि मैं आईपीओ में नहीं करता हूँ. स्टॉक में स्टडी स्लो एंड स्टडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट आईपीओ थोड़ा सा डाइजी, थोड़ा सा फिशी लगता है. एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ विपुल जी, इसमें क्या होता है. लाइक आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, राइट? वो पूरा 10 दिन का पीरियड होता है. यू स्टार्ट, वो एलोकेट होना और वो होना, राइट? उसमें लॉट ऑफ फैक्टर्स. एंड आईपीओ में एक बेसिक रूल है, एक डीमेट से आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो जब उसकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, राइट? तो मोस्ट ऑफ आईपीओ का होता है, तो इफेक्टिवली आप एक ही आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, विच इज अराउंड 15,000. इट्स अ ट्रू. स्टैंडर्ड रूल. वो किसी भी प्राइस पे है, आपको 15,000 के आसपास ही इन्वेस्ट होगा. अब ट्रू. 15,000, यू कैन अज्यूम वो 20-30% पे प्रॉफिट पे भी खुल सकता है. आई एम अज्यूमिंग दैट, राइट? तो 4-5 हजार रुपए के लिए मैं 10 दिन तक अपना दिमाग खराब नहीं कर सकता. एज ट्रू. सिंपल एज ट्रू. दैट. ट्रू. ट्रू. मेरा पर्पस जो रहता है, आई हैव मूवन आउट ऑफ दैट गेम. मैं जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, मैं उस टाइम पे देखता हूँ मेरे को एक्वायर करना है या नहीं करना, राइट? एंड डू आई नीड टू प्ले अ बिगर गेम इनटू दिस, राइट? तो मेरे को वेरी ऐसा ट्रू. लगता है कि अगर आप वो 4,000 रुपए के लिए 10 दिन की सिरदर्दी ले सकते हो, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है आज की डेट में. देयर आर लॉट ऑफ आईपीओ जो डाउन खुलते हैं या बिल्कुल न्यूट्रल प्राइस पे खुलते हैं, गिर जाते हैं, राइट? वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. सो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आईपीओ का इतना श्योर श्योर प्रॉफिट मानना छोड़ के, वी नीड टू एनालाइज एवरी आईपीओ के क्या चल रहा है, एंड देन वी हैव टू डिसाइड कि उसमें क्या करना चाहिए. Yes, so again, audience, just for a clarity or disclaimer, जैसे आकाशदीप ने इनिशियली बोल दिया था कि जो भी डिस्कशन, जो भी कंपनीज के नाम या जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, आइडिया शेयरिंग. इसको एज एन एडवाइस आप ले सकते हैं, बट डोंट अपनी तरफ से R&D करके, रिसर्च करके फिर या अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लेके आगे बढ़े. सो दैट्स
लीगल डिस्क्लेमर। आप तो इसको रेफर कर सकते हो समझने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, डोंट बाय और सेल बेस्ड ऑन दैट। एंड राइट, आई थिंक हमें यहाँ पे वो ऊपर वो भी डाल देना हाँ, चाहिए, राइट? यस 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 यस। सो ये और कोई भी कंपनी का हम नाम ले रहे हैं तो दैट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस ओनली, ऐसा कोई कंपनी को ऊंचा दिखाने के लिए नीचा दिखाने के लिए वाली बात डेफिनेटली। नहीं है, सो डोंट टेक इट दैट वे ऑडियंस। तो यू गेव वन वेरी गुड एग्जांपल कि जैसे 120 माइनस एज और 100 माइनस एज, जैसे मेरा 40 है तो 100 माइनस 40 फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो ये आपने एज वाला एग्जांपल दिया था कि 100 माइनस एज करो, बट द क्वेश्चन इज when should a person start investing? What is the right time? What is the right age, or a rather right time for starting the investment? आई कैन सी आपने बड़े स्ट्रेटेजिकली पूछ रहे हो, व्हाई, हाउ मच एंड नाउ वी आर कमिंग कब, राइट? सो आई थिंक आप पूरा कवर करना चाह रहे हो इसका स्पेक्ट्रम। नहीं, True, दैट इज true. गुड, दैट इज गुड। एंड यू नो, इस पे तो आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट दिस, राइट? मेरे को लगता है जितना जल्दी आप कर सकते हो यू शुड डू दैट। आई विल गिव यू माय एग्जांपल, राइट? जब आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू करी, मैं देख बहुत टाइम से रहा था, तब स्टाइपेंड का पैसा आना शुरू हुआ। 3,000 मेरे को स्टाइपेंड मिलता था, उसमें भी आई वाज प्रीटी श्योर कि मेरे को स्टॉक मार्केट में लगाना है। आई नो मेरे में शुरू से वो एक इंक्विजिटिवनेस थी उसके लिए, स्टॉक मार्केट के लिए। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड उस टाइम पे बीइंग अ लेमैन मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, मैंने रैंडम स्टॉक उठाए। उस टाइम पे आई टोल्ड यू moneycontrol.com बहुत चलता था, उसके नीचे यू नो उसमें वो मनी भाई करके स्टिम्युलेटर गेम भी एग्जैक्टली, आता था, तो एग्जैक्टली। आई थिंक वी आर ऑफ द सेम एरा, राइट? तो आपने भी वही यूज किया है। तो उसके नीचे उसके कमेंट्स आते थे हर एक स्टॉक के नीचे। आई एम नॉट श्योर, मैं वो बहुत पढ़ता था एंड रैंडम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता था। उस टाइम पे एक स्टॉक मैंने पढ़ा, डॉक्टर डेटसन लैब्स। मैंने वो स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो 7 रुपए का था। इट वेंट अप टिल शायद 15 रुपए हो गया, मतलब माई मनी डबल्ड इन लाइक 1 मंथ। एंड उसके बाद एक दिन मैं उठा, सीधा न्यूज आई कि वो स्टॉक डीलिस्ट हो चुका है, इट वाज अ फ्रॉड कंपनी, राइट? एंड इट्स अ रियल स्टोरी। वो मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी दिखता है, इतने स्टॉक्स पड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट इट स्टिल अपीयर्स इन माय पोर्टफोलियो। वो याद दिलाता है आपको याद कि दिला, यस यस यस, एंड आई फील प्राउड ऑफ दैट, इट्स बैज ऑफ ऑनर, राइट? तो माय पॉइंट इज कि कब शुरू करो, उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आप जितना जल्दी शुरू करोगे, जो आप मिस्टेक्स करोगे, वो आपको ऐसा लेसन सिखाएंगे कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे, राइट? तो बोलते हैं ना कि ड्राइविंग सीखनी है, पहले छोटी गाड़ी पे सीख लो, लग भी जाए तो ठीक है यार, बड़ी गाड़ी होगी तो दुख ज्यादा लगेगा। तो सेम वे ट्रू। मेरे को लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जितना जल्दी आप सीखोगे, यू विल बी एबल टू लर्न कि आपको क्या मिस्टेक्स हुई है। आई हैव टोल्ड अबाउट डॉक्टर डेटसन लैब्स, देयर वर सम ऑफ द अदर स्टॉक्स, रसोया प्रोटीन भी मेरे पोर्टफोलियो में था, राइट? एंड नाउ द बेसिक अदर पार्ट कि क्यों जल्दी करना चाहिए, इट्स द कंपाउंडिंग इफेक्ट, वी ऑल नो, राइट? वॉरेन मैजिक ऑफ बफेट बोलते हैं, कंपाउंडिंग, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरी बुक में 8th चैप्टर है विच टॉक्स अबाउट द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड विच इज कंपाउंडिंग। एंड इट्स वंडरफुल। आई टोल्ड यू कि जब मैंने शुरू में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे मैंने ऐसे लेके रख लिए, बट ओवर द पीरियड इट हैज कंपाउंडेड दैट मच कि उन्होंने को बहुत अच्छी रिटर्न दी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट? सम वर लेसन्स, सम वर लर्निंग्स, बट सम गेव मी गुड अर्निंग्स एज वेल, राइट? सो ट्रू। वो अर्निंग के कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए और लर्निंग के कंपाउंडिंग इफेक्ट के लिए डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट। आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। एंड आज की डेट में इंडिया में कोई, आई थिंक पीपल डोंट हैव ऑप्शन। अगर आप बोलो ना कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना, आई डोंट वांट इक्विटी एक्सपोजर, मेरे को लगता है दैट इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट आर यू लेफ्ट विद, राइट? ट्रू। एफडी कोई इन्वेस्टिंग ऑप्शन ऑप्शन नहीं है अपने आप में, राइट? रियल एस्टेट के इंडिया में बहुत अलग चैलेंजेस हैं। गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी घर वालों के पास मेरे को लगता है होता है। द इक्विटी इज वन थिंग जो मेरे को लगता है शायद पेरेंट्स के पास नहीं होता और कम होता ट्रू। है। दैट ट्रू। इज वेरी क्रूशियल, राइट? सो दैट इज स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। तो सूनर द बेटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। वेरी गुड। आपने जो अमाउंट बोला ना एक स्टॉक में, आपको जो लर्निंग स्टॉक 7 रुपीज, तो उससे मुझे याद आया पेनी स्टॉक, विच इज अगेन अ बज़वर्ड इन स्टॉक मार्केट। सो व्हाट इज पेनी स्टॉक? मतलब डज इट रियली, मतलब वो जादू करता है पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक पे ट्रस्ट रखना चाहिए, करना चाहिए? व्हाट इज योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दैट? सो इंडिया में पेनी स्टॉक को लेके एक अलग ही क्रेज है, लोगों को लगता है जितना छोटा स्टॉक देयर इज बेटर पोटेंशियल। दैट इज ऑल मिथ, दैट इज द बिगेस्ट मिथ इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को
कि प्राइस की चीजों को प्राइस से कभी भी तोलना नहीं चाहिए कि इतने रुपए का स्टॉक है। एंड यू आर राइट, पीपल पीपल कम टू मी, अरे यार ये स्टॉक तो 700 रुपए का है, लूं या ना लूं। डजेंट मैटर। अगर आपको 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, आपको 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, आप 5,000 का स्टॉक ले रहे हो तो आप दो लेके रख लो ना। अगर आपको 10 रुपए का स्टॉक मिल रहा है, आप 1,000 लेके रख लो। वो मैटर ही नहीं करता है। वट मैटर्स इज कि वो किस पीई रेशो पे चल रहा है, राइट। अगर एक पेनी स्टॉक 10 रुपए का भी है, हो सकता है वो 100 के पीई पे चल रहा हो, उसकी जो अर्निंग हो वो बहुत ही कम हो, बट उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो जिसको हम बोलते हैं, लाइक उसका भाव कितना, उसकी वर्थ कितनी है, राइट, वो हो सकता है 100 का हो। सो जो एक्चुअल प्राइस है स्टॉक का वो मैटर ही नहीं करता। हम उसको कंसीडर ही नहीं करते कि इसका प्राइस कम है, प्राइस ज्यादा है। प्राइस ज्यादा हो तो फिर सारे एमआरएफ ही ले ले, उसके अलावा तो कुछ ले ही ना, राइट। बस के जिसका प्राइस ज्यादा वो अच्छा, राइट। ट्रू ट्रू सो ट्रू। दैट ऑब्सेशन विद पेनी स्टॉक्स इज क्रेजी। मेरे को लगता है स्टॉक प्राइस किसी भी स्टॉक का मैटर ही नहीं करता। यू हैव टू गो डीप डाउन एंड यू हैव टू सी उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, एंड दैट इज इक्वल, चाहे वो स्टॉक 5 रुपए का हो, चाहे वो 5,000 का हो। आपको उसके फंडामेंटल्स चेक करने हैं। अगर आप उस पर बुलिश हो, आपको लगता है इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, द कंपनी इज नॉट अ शेल कंपनी और अ फ्रॉड कंपनी, देन यू शुड इन्वेस्ट। मेरे पास स्टॉक्स हैं जो 5, 10, 20 रुपए के भी हैं, and मेरे पास स्टॉक्स है जो 10,000 का भी है, राइट, जो 20,000 का भी एक स्टॉक है। सो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम सरप्राइज कि इंडिया में पेनी स्टॉक को लेके अलग ही ऑब्सेशन है, अलग ही और हर राइट। रोज आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलते हैं, सो नहीं नहीं, सो प्राइस ऑफ द स्टॉक शुड नॉट बी अ फैक्टर एट ऑल। तो इसलिए मैं तो पेनी स्टॉक के कॉन्सेप्ट में ही नहीं मानता। आई सिंपली सी द फंडामेंटल्स, क्या वैल्यूएशन है, एंड डिसाइड योर टेक ऑन दैट। वेल वेल एक्सप्लेन। सो पेरेंट्स हमको कुछ चीज करते हैं ना, तो बोलते हैं कि बेटा ये मत करना। सो ऐसी व्हाट आर द थ्री थिंग्स एडवाइस, three things to know before entering into stock market, or rather three myths about stock market? सो लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं बताना चाहूंगा, बट अगर आप तीन ही बोल रहे हो तो आई हैव टू समराइज इट। सो नहीं, आप ज्यादा भी बोल सकते हो, आई डोंट माइंड, सो इट्स अप टू यू। आई ट्राई। हम वो धीरे धीरे कवर तो कर ही रहे हैं, एंड एज यू सेड, लाइक सक्सेस स्टार्ट्स विद नो, मेरा ये मानना है। अगर आपको ये ट्रू पता है ना जीवन में क्या नहीं करना, तो आप पहुंच जाओगे क्या करना है। अगर ट्रू, आप ये वेरी ढूंढते ही ट्रू। रहोगे कि अच्छा हाँ यही करना है, वही करना है, नहीं मिलेगा। पहले ये देख लो कि ये तो नहीं करना, दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन, राइट। मैं वेरी बहुत ट्रू। इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। तो तीन ही चीजों की बात करते हैं। यू सेड थ्री, so let's stick to that. So three myths we can say, or three misconceptions, right? Or three mistakes people make when before entering stock market. So first is role, second is expectations, and third is emotions. तीन चीजों में summarize करते हैं चीजों को, and that will cover broadly everything. So first is role, like whether you are coming as a trader or investor, लोगों को clarity होनी चाहिए। लोग घुस जाते हैं, एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट, कि लोग एज अ ट्रेडर आते हैं मार्केट में, एक दिन प्रॉफिट बनाया, 2 दिन प्रॉफिट बनाया, एक हफ्ते बाद वो डाउन लगा, अरे नई नई पोजीशन कैरी करते हैं, यार पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनता है। दैट यू शुड हैव डिसाइडेड बिफोर एंटरिंग द मार्केट के पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है या शॉर्ट टर्म में बनता है, राइट। एंड अगर आप ऐसा ट्रेडर आ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग ट्रेडिंग गलत है, इन्वेस्टिंग गलत है, राइट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। आई थिंक दोनों एक अलग ही गेम है। इफ यू आर अ ट्रेडर, यू हैव टू स्टिक टू योर रूल्स। आपका मेन एग्जीक्यूशन है, राइट। आप उसको डेली बुक करते हो या वीकली बुक करते हो, बट यू हैव टू स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन रूल्स, यू हैव टू सेट स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन रूल्स कि अगर इतना स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई नीड टू आउट, इतना प्रॉफिट मेट हुआ, आई नीड टू गेट आउट, राइट। सेम वे अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म रूल्स नहीं सेट करने पड़ेंगे कि अगर ये एक दिन 2% गिरा आई शुड पैनिक अबाउट दैट, नहीं। इन्वेस्टिंग में माय सर यूज टू से कि अगर आप एक स्टॉक 200 रुपए में खरीद रहे हो, वो अगले दिन गिर के 180 रुपए पे आ गया है, देन यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर आपने रिसर्च करके एक स्टॉक निकाला है, आपको सस्ता मिल रहा है, आपको और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अरे यार मेरे को तो और बेटर सस्ते प्राइस में मिल रहा है। बट लोग पैनिक कर जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो गिर गया, नहीं लेते, बेच देते हैं, राइट। तो इट्स बिगेस्ट मिस्टेक। आप ट्रेडर की तरह आ रहे हो तो ट्रेडर की तरह बिहेव करो, इन्वेस्टर की तरह आ रहे हो तो इन्वेस्टर की तरह बिहेव करो। डोंट जंप योर गन्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। डिफाइन योर रोल, राइट। डिफाइन योर रोल। That is the basic first mistake people make, and that people need to learn. Second जब हम आते हैं, that is expectations. We started with that. लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट तो जादू की मार्केट है, तो पैसा डबल कब होगा। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं अरे यार तूने कभी स्टॉक बताया था, उतना मजा नहीं आ रहा, एक साल में डबल ही हुआ है। तो लोगों को समझ ही नहीं आता
कि स्टॉक मार्केट भी जो है एक रैशनल मार्केट है, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जैसे गोल्ड है, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे डेट है, वैसे स्टॉक मार्केट भी एक रैशनल मार्केट प्लेस है टू इन्वेस्ट, राइट? वो कोई जादू नहीं है यहाँ पे कि आपको 200-300% रिटर्न ऐसे ही मिलता जाएगा, राइट? ट्रू, तो हैविंग अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप मार्केट में एक्सपेक्टेशंस यही लेके आ रहे हो कि मैं रोज का 10% बना के जाऊंगा, तो यू आर लाइक बाउंड टू डूम समडे। तो आप गिरोगे ही गिरोगे किसी दिन, राइट? वो आज हो, कल हो, 2 दिन बाद हो, यू नेवर नो। बट आप लॉन्ग रन में एक रियलिस्टिक पैसा ही बना सकते हो स्टॉक मार्केट से। एंड इफ यू आर बीटिंग द बेंचमार्क और आप उतना भी जनरेट कर पा रहे हो, देन कंसीडर यूर सेल्फ सक्सेसफुल, राइट? So second is like having the realistic expectations about the market, right? So first we have roles, second we have expectations, and third is emotions. So I think आप स्माइल कर रहे हो तो आपको पता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं स्टॉक मार्केट में, राइट? तो ट्रू, थर्ड इज लाइक पीपल गेट अटैच टू स्टॉक्स, राइट? मैं अपनी स्टोरी देता हूँ। मैं एक स्टॉक को स्टडी करता हूँ, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। द मोमेंट जब मेरे को लगता है कि हाँ इसका पोटेंशियल पे पहुंच गया, आई स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट। मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसके बाद, आई डोंट गेट इमोशनली अटैच टू द स्टॉक्स, राइट? बट लोग हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा येस बैंक का, राइट? सो इट यूज टू ट्रेड एट 400 रुपए के आसपास, इट वो गिरा 180 पे, काफी टाइम तक वहां पे रहा, फिर 150, फिर 60 रुपीज, राइट? वो अल्टीमेटली लेस देन 10 रुपीज पे भी आ गया था, 5 रुपए इंट्राडे, 6 रुपए पे भी रहा। 4-5 रुपए में भी आ गया था, यस, 4-4, एग्जैक्टली। 5। एंड विपुल जी, आई टेल यू, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनके पास भर भर के यस बैंक के स्टॉक्स पड़े हैं। आई एम नॉट सेइंग यस बैंक बुरा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट माय ओनली पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज कि लोग उसको सिर्फ इस वजह से नहीं बेच रहे क्योंकि उनको लगता है नहीं नहीं एक दिन हमें ये अमीर बना के जाएगा स्टॉक, राइट? सो दैट इज द इमोशनल अटैचमेंट दैट पीपल मेक विद स्टॉक्स। मैं पर्सनली इसको अपनी बुक में भी मैंने डिस्क्राइब किया है, कॉल इट देवसेना सिंड्रोम। बाहुबली मूवी, राइट? देवसेना का सीन याद आता है कि देवसेना वाज वेटिंग के बाहुबली आएगा बचाएगा, इतने सालों बाद बाहुबली आता है बचाता है। तो लोग रियल लाइफ में ना बाहुबली मूवी ही जी रहे हैं और देवसेना बन के बैठे हैं, कह रहे नहीं नहीं एक टाइम आएगा स्टॉक रिकवर करेगा, हमें अमीर बनाएगा। बट रियल लाइफ में कोई बाहुबली नहीं आने वाला। दैट इज हाउ इट मार्केट वर्क्स। लोगों को लगता है अरे ठीक है, लॉस तो ऑलरेडी हो रहा है, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे आर लूजिंग। अगर वो यस बैंक को या कोई भी स्टॉक जिसमें वो स्टक है, उसको बेच के मार्केट में कोई भी क्वालिटी स्टॉक्स उठा लेते, तो दे कुड हैव जनरेटेड बेटर रिटर्न्स देन दैट, ट्रू। राइट? बट वो अपने इमोशनल डायलेमा की वजह से एक स्टॉक्स में फंसे रहते हैं, राइट? सो यू नो दैट इज द इमोशंस, लाइक डिसेक्टिंग योर इमोशंस फ्रॉम द स्टॉक। लाइक आपके डिसीजन और आपके इमोशंस दोनों अलग अलग होने चाहिए, वो आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। दैट इज अ थर्ड मिस्टेक पीपल मेक, एंड दैट इज लर्न फ्रॉम इट। वेल एक्सप्लेन। जो थर्ड वाला, जो इमोशंस वाला आपने बताया ना, मैंने स्माइल दिया क्योंकि मैंने काफी सुना है एंड काफी ये फील भी किया है कई स्टॉक्स में पर्सनली। तो दैट्स रियली समथिंग कि जिस लोगों को ही कंट्रोल करके ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए टू बी गेट द मैक्सिमम और टू बी दी सक्सेसफुल इन दैट डोमेन। सो डेफिनेटली। दैट्स ट्रू। तो कोई ऐसा फनी स्टोरी आप तो मतलब यू आर कमिंग अक्रॉस विद lot of investors and guiding and supporting lot of investors, तो कोई ऐसा एक आध दो फनी स्टोरी या फनी इंसिडेंट जिससे लर्निंग भी मिले ऑडियंस को, तो वुड यू लाइक टू शेयर एनी सच यस यस फनी स्टोरी? डेफिनेटली। मार्केट में तो भरी हुई है, लाइक आपने बोला मेरे माइंड में 100 स्टोरीज चलने लगी, मैं कौन सी बताऊं? तो एक स्टोरी बताता हूँ जिसमें मैं भी बड़ा फंस गया था, मेरे को भी लगा था ओके शायद दिस इज ट्रू। तो हम कोविड का टाइम याद करते हैं, 2020 मार्केट फेल एकदम से बहुत ज्यादा, एवरीबॉडी वाज इन पैनिक इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत पैनिक हो रहा था, अरे यार ऐसा तो कभी देखा ही नहीं लाइफ में, राइट? तो ट्रू। उस टाइम पे ऑक्सीजन शॉर्टेज था, स्पेशली आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो था, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर एरियाज, बट ऑक्सीजन का शॉर्टेज था। तो एवरीवेयर एवरीवेयर, यस। ऑक्सीजन एग्जैक्ट शॉर्टेज पूरे बहुत है। इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ही वी हैव सीन कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, तो ऑक्सीजन के स्टॉक्स भाग रहे थे एकदम से। सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड बॉम्बे ऑक्सीजन। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम, बट यू कैन गूगल, यू विल फाइंड द होल कंपनी एंड द स्टोरी। तो उस टाइम पे उसका स्टॉक एक दिन में शॉर्ट अप कर गया, लाइक इट वेंट अप लाइक क्वाइट अ बिट इन वन डे ओनली, कि एकदम से स्टॉक बहुत ज्यादा जंप करेगा। एवरीबॉडी वाज लाइक, करे ऑक्सीजन की कंपनी है, पैसा बनाएगी, ये शॉर्टेज है। एंड द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर टू द कंपनी क्लैरिफाइड कि वो ऑक्सीजन के बिजनेस में ही नहीं है, उनका सिर्फ नाम में ऑक्सीजन है, राइट? सो
that was such a kind of emotional foolishness और crowd behavior जिसको हम बोलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी सिंपली गेट पैनिक और हम हमें बस ऑक्सीजन दिखा, हमने बाय करना शुरू कर दिया। एंड इसलिए नहीं, मैं कोई पुरानी स्टोरी नहीं सुना रहा, इट्स 2020 का स्टोरी, राइट? सो दिस इज द वेरी फन स्टोरी दैट गेव मी अ लॉट ऑफ लेसन्स कि मार्केट इज लाइक रैंडम, मार्केट में क्राउड बिहेवियर बहुत ज्यादा है। यू हैव टू सी कि आपको क्या बाय कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट इज वेरी वेरी फनी स्टोरी फॉर मी, दैट गेव मी अ लॉट ऑफ लर्निंग, बिकॉज पहले पहले मैंने भी बिलीव किया था शायद ये ऑक्सीजन का स्टॉक है, राइट? तो बट लोगों ने कोई प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च किए बगैर से फॉलो द नेम एंड स्टार्टेड भेड़ चाल में एवरीबॉडी स्टार्टेड बाइंग द स्टॉक, सो ट्रू। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट, 99% लोग इंडिया में अभी भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए आस्किंग, अरे समझाओ मत, सिंपल बस स्टॉक का नाम बता दो एंड दिस शुड अच्छा चलना चाहिए। ये मतलब वो चाय कितली पे बैठे हैं, तो तू किस में इन्वेस्ट कर रहा है मुझे बता दे। अरे पापा, एग्जैक्टली, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या ये इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें आपको भी करना चाहिए। दैट इज, मुझे किसी ने गाइडेंस दिया था कि यू शुड इन्वेस्ट इनटू दी स्टॉक्स जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। जैसे मैं रिक्रूटमेंट में हूँ, तो आई शुड इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स ऑफ माई इंडस्ट्री, so that I'll also have the up and downs and insights of my industry. तो आप जिस इंडस्ट्री में, अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, तो आपको बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज आपको इंडस्ट्री के अपडेट्स मिलेंगे। सो इज दैट ट्रू? मतलब ये मैंने किसी से एडवाइस लिया था, ये सही है? व्हाट इज योर एडवाइस ऑन इट? दिस इज वेरी करेक्ट पॉइंट। मैं उसका अंडरलाइन थॉट पकड़ता हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ उसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। अंडरलाइन थॉट का मतलब उनका ये है कि अगर आप बैंकिंग में हो तो आपको बैंकिंग के नुएंसेस पता होंगे कि कैसे ऑपरेट करता है। आप उसमें फ्रॉड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करो, आपको पता है कि कौन सी, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उसके फाइनेंशियल्स को, राइट? सो उसका थॉट इज कि वहां इन्वेस्ट करो जहां आप समझ सकते हो, राइट? मेरा पर्सनल रूल है, आई हैव रिटन दैट इन माय बुक, के 1 मिनट एक्सप्लेनेशन। अगर आप अपनी कंपनी को 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एक, मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो करती क्या है, आप इन्वेस्ट मत करो। अगर आप रैंडम इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, किसी ने बोल दिया, आपने यूट्यूब से सुन लिया, आपने रैंडम इन्फ्लुएंसर से सुन लिया इसमें इन्वेस्ट करो, दिस इज ऑल रॉन्ग। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा खत्म हो जाएगा। यू शुड इन्वेस्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक जो आप भी बोल रहे हो वो भी एग्जैक्टली exactly उसी लाइंस पे ही है। आपकी इंडस्ट्री इस वजह से बोला जाता है बिकॉज आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, राइट? बट फॉर अस लाइक ऐसा पेक्यूलर नहीं होता उसी इंडस्ट्री में, बट understand before invest, right? That is the हाँ, rule of मतलब this. फंडामेंटल की जिस इंडस्ट्री में आपको ज्यादा Exactly, नॉलेज हो या इन डेप्थ आपको इनसाइड इनसाइड आउटसाइड न्यूज अपडेट्स मिलते हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज दी definitely. अंडरलाइन थॉट जो आपने बिल्कुल सही बोला। सो देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंस कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। यूट्यूब पे तो मतलब भरे पड़े, अभी मतलब पेनी स्टॉक की बात करें या बजिंग स्टॉक की बात करें या 10x की बात करें, मतलब यू विल फाइंड लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, फेसबुक। यू फेसबुक तो खैर ठीक है, बट यूट्यूब एंड टेलीग्राम, आई से टेलीग्राम पे Yes, लॉट ऑफ चैनल्स आएगा। अभी तो एआई जनरेटेड वीडियोस वाले काफी एड्स आते हैं, मैं हम डेली टिप्स देते हैं और हमारा ग्रुप कोई छोड़ता नहीं है, बिकॉज ये एंड सो एंड सो। सो टेलीग्राम इज ऑल्सो बजिंग विद सच टिप्स एंड कंटेंट। सो किस पे बिलीव करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यूज ऑन इट? देखो जितना मैंने YouTube या इस पे सोशल मीडिया पे देखा है, तो आई एम तो टायर्ड ऑफ वाचिंग दीज वीडियोस, राइट? उसमें ज्ञान की बात कम होती है एंड दे टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर देम। मेरे को ऐसा लगता है वो हुक लाइंस डालना ज्यादा पसंद करते हैं कि जिससे कंटेंट की एंगेजमेंट अच्छी हो। मेरा पर्सनल ये मानना है, राइट? तो मेरे को लगता है 90% बकवास है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन पर्सन कि इसका बकवास है उसका बकवास है, बट आई विल गिव यू सिंपल थिंग, बहुत सिंपल सी चीज समझते हैं बेसिक से, राइट? एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते होते थे छोटे होते, राइट? प्रिंसिपल इनटू टाइमिंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तीन चीजें हैं, उसी को पकड़ो। कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, राइट? कितनी ड्यूरेशन में इन्वेस्ट हो रहा है और कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो। ये तीन ही चीजें हैं पूरी इन्वेस्टमेंट की समरी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट उठा लो, उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहे हो उस पे। बस दैट इज समरी। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है कि जो भी वीडियो या जो भी कंटेंट है जो इनमें से किसी तीन की बात कर रहा है, जो आपको इसमें हेल्प कर सकता है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है कि आप कैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करोगे, यू कैन इन्वेस्ट बेटर, एक्सपेंसेस कट करो, या आप शुरू से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो बजाय कि पहले एक्सपेंस करने के, दैट कुड बी हेल्पफुल, वो आपको इसमें शायद हेल्प कर रहे हैं, राइट? इफ समबडी इज टेलिंग यू हाउ टू अर्न बेटर, रेट ऑफ रिटर्न कैसे ज्यादा जनरेट करें, दैट इज अ ट्रू वैल्यू एड, आपको अल्फा जनरेट करना सिखा रहे हैं। कोई आपको ये ट्रिक दे रहा है कि ज्यादा लंबे टाइम तक कैसे इन्वेस्टेड रह सकते हो, कि आप अपनी सिप कैंसिल मत करो, एनीथिंग कुड बी दैट। इफ एनी वीडियो और एनी कंटेंट इज एडिंग वैल्यू टू एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, वॉच दैट। इसके अलावा सब बकवास है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक here, you know, हाँ, वो create some controversy. किसी का Exactly. नाम लेना सही नहीं रहेगा। बाकी मतलब आई आई हर्ड अ फनी स्टोरी फ्रॉम वन फ्रेंड की चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए, वरना तो मतलब वो बोलते हैं ना, वो मानहानि का दावा कर देंगे अपने ऊपर। बट वो चैनल का बिजनेस स्टॉक मार्केट का है, और वो कंपनी बैंकरप्सी पे मतलब बैंकरप्सी की कगार पे चल रही है, पूरा ग्रुप मतलब। तो मतलब हाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन अ चैनल की जो जो खुद का बिजनेस संभाल नहीं पा रहा है और लोगों को इन्वेस्ट करने का ज्ञान दे रहा है। सो दैट इज Exactly. राइटली सेड, लोगों को Exactly. पता चल जाएगा कि मैं कौन सी चैनल का बात कर रहा हूँ। तो हम सबको समझ आ चुका है विपुल जी की आप किसकी बात कर रहे हैं। बट दैट इज ट्रू, राइट? मतलब मैं जब वीडियोस देखता हूँ ना, आई एम सरप्राइज टू सी लोग ये बात कर रहे हैं। आप मंथली इतना इतना इन्वेस्ट करना शुरू करो, एज्यूम करो इतना रेट ऑफ रिटर्न है, 15 साल बाद इतने पैसे बन जाएंगे। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, आप सिर्फ कैलकुलेटर निकालो, आपको वो आंसर दे देगा। व्हाई शुड आई वॉच अ 10 मिनट वीडियो फॉर दैट? ट्रू उसका कोई ट्रू लॉजिक नहीं है। इट्स नॉट टचिंग अपॉन एनी वैल्यू एड इन एनी ऑफ द थ्री फैक्टर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट और कितना रेट। इसके अलावा somebody is doing calculation, वो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मेरा इतना पैसा हो जाएगा, बट वो आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। अवॉइड दैट। एंड मोस्ट वेरी ऑफ द वीडियोस आर टॉकिंग अबाउट दीज रैंडम कैलकुलेशंस ओनली, जो आपको अच्छा फील करवाए। अवॉइड दैट, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे वो लोग। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो आकाशदीप, सो फार इट वाज अमेजिंग, काफी काफी मजा आया। आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट वेरी मच। एंड आपने अपनी बुक के बारे में भी कुछ हमें हाइलाइट्स दी, एंड थैंक यू। आपने I would like to announce you on your behalf कि you are going to give 5 copies of your book as a giveaway to our audience. So audience, you can show your interest in the comment box. आप comment box में yes I am interested for this book copy आप टाइप कीजिए, एंड हम लकी 5 को सिलेक्ट करेंगे जो ये बुक की फ्री कॉपी के लिए एलिजिबल रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस जेस्टर आकाशदीप। एंड नाउ मूविंग ऑन टू few एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस हमने एडवांस लेवल के लिए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, जिनके ऊपर पूरा पॉडकास्ट हो सकता है। एंड इफ ऑडियंस विल शो इन द कमेंट बॉक्स their interest, then we would love to have you again on our platform, on our channel, and we'll have your detailed podcast on them. So the very first question is option trading safe? ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके काफी मिथ्स एंड काफी फियर फैक्टर्स और काफी डायलेमास व्हाट टू से। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इस पे तो कई पॉडकास्ट हो सकते हैं एक ही टॉपिक पे। आई थिंक ऑप्शंस ट्रेडिंग इज दैट क्रूशियल और दैट कॉम्प्लेक्स। तो सीधी भाषा में बोलूँ तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, राइट? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हो तो उसके जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। एवरीबडी हु हैज एनीबडी हु हैज ट्राइड दिस, उनको पता होगा उसमें कितनी फ्लक्चुएशंस है, कितना जल्दी यू कैन हिट अ स्टॉप लॉस, या कितना जल्दी आप अर्न कर सकते हो, राइट? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। माय सिंगल एडवाइस इज कि अगर आप इतने नॉलेजेबल नहीं हो, राइट, यू डोंट हैव स्किल और यू डोंट हैव टाइम, डोंट गो फॉर दैट। इट्स अ फुल टाइम जॉब। ये बहुत इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अब रैंडम ऐसे एक दिन ट्राई करो, मैं सुबह उठ के ऑप्शंस खरीद लूं, शाम को बेच दूं, इट डजंट वर्क, राइट? आप एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, एक दिन ऐसा आएगा, योर रोल विल बी you'll be in true losses, right? And so it's a very complex thing. Unless you have skill and time to do that, don't do that, right? इसको ब्रीफली और टच कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि यार ऑप्शन सेलिंग इज गुड और ऑप्शन बाइंग इज गुड। सो थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट इफ आई टेल यू, ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत सेफ है, but when it comes to option selling, there are better chances to earn money than option buying because of time value of money, right?
सो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, राइट? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक हफ्ते बाद एक्सपायर होना है। आई एम टेकिंग इट लाइक वेरी वेरी बेसिक लेवल पे। और उसमें एक कंडीशन है कि अगर ये प्राइस इसका इससे ऊपर रहा, राइट, तो पैसे आपको मिल जाएंगे, राइट? सो द कॉन्सेप्ट सेज कि अगर वो वैल्यू सेम भी रहती है तो उसका डे बाय डे जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो आपको मिलता है, राइट? सो एक ऑप्शन सेलर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके साइड पे होने की वजह से बेनिफिट मिलता है, इवन इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑन दैट, राइट? सो एंड देयर इज लेसर चांसेस कि जो कोई भी स्टॉक पे अगर आप ले रहे हो, इंडेक्स पे ले रहे हो, वो 5% 10% मूव करेगा एक हफ्ते में, राइट? सो दैट इज वाई time value of money being on your side, option selling is little safer, and you have better chances to earn as compared to option buying, which is a pure speculation, I believe. कुछ लोग चार्ट्स डाल के एनालिसिस करते हैं। आई एम नॉट अ चार्ट एनालिस्ट, तो मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं बता सकूंगा, बट आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन रियल लाइफ जिन्होंने बहुत सारे बट पैसे रिस्की गवाए तो हैं। है, रिस्की तो है बहुत। और सुपर लोग बोलते हैं रिस्की। कि आप 10-10 रुपया करके कमाते, जैसे आपने बताया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, तो एक दिन 10 कमाया, दूसरे दिन 20 कमाया, बट तीसरे दिन यू लॉस 50, तो मतलब आपका कैपिटल भी लेके जाएगा। सो एवरीथिंग इज करेक्ट, बस 50 को आप 500 कर दीजिए। एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट? सो आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, एक दिन कमाते हैं, 2 दिन कमाते हैं, एंड इवन पूरा महीना कमाते हैं, बट देयर कम्स वन डे जिसपे उनका सारा जीरो हो जाता है। आई एम नॉट सारा श्योर, जीरो हो जाता है। राइट? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू एक्सप्लेन। लोग बोलेंगे अरे वो स्टॉप लॉस लगा लो, ये लगा लो, और बट वो इट्स नॉट दैट इजी। प्रॉफिट तो लेके जाता है, बट आपका कैपिटल भी पूरा लेके जाता है ना, उसमें तो मतलब डेफिनेटली। हाई मार्जिन, और मतलब वो आपने इन्वेस्टमेंट जो आपका इन्वेस्टमेंट पे आपने 10x लिया होता है, तो यू नीड टू पे दी रिमेनिंग अमाउंट एग्जैक्टली। टू दी ब्रोकर। सो बहुत क्राइसिस वाला सिचुएशन हो जाता है कई लोगों बार। के ईएमआईस बनते हैं सर, इस पे मैंने देखे हैं जो लोग भी ऐसे करते हैं, ट्रू तो ट्रू ट्रू। इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। अवॉइड इफ यू डोंट हैव स्किल और टाइम। और जस्ट एडवाइस कि अगर आप एक्चुअली करना चाहते हो तो ऑप्शन सेलिंग इज बेटर देन ऑप्शन बाइंग, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए उतनी कैपिटल भी चाहिए, राइट? एंड दैट इज द ट्रू रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज इट्स अ सेफर गेम ट्रू। कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। So that was amazing. You gave very good insights on options trading, and the सेकंड वन इज आपने ऑप्शन स्टीयरिंग में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का भी बता दिया कि ऑप्शन सेलिंग इज गुड, बट उसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, सो लोग सेलिंग नहीं करते, बाइंग पे ही ज्यादा एग्जैक्टली। जाते, बट दैट इज मोर रिस्की। सो डेफिनेटली। now another buzzword is US stocks. There is a lot of talk about investing in US stocks, and कुछ कुछ apps भी है, मतलब they are doing heavy marketing, heavy promotion. So is it workable? Uh, is it safe? Is it worth it? मतलब ये करना सही है? What is your take on it? ओके। सो पहले तो सिर्फ मार्केटिंग में आके कि बाहर इन्वेस्ट कर लो, दैट शुडंट बी द ओनली केस, राइट? लिंक्डइन पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे पुश फॉर, कह रहे हैं नहीं नहीं, इन्वेस्ट इन यूएस, मूव टू यूएस, यहाँ पे करो। तो मेरे को लगता है इतना कोई इशू नहीं है, राइट? करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है इंडिया का आईएनआर एज कम्पेयर टू यूएसडी, ठीक है, डेप्रिशिएट करता है, एंड यू कैन अज्यूम 2-3% हर साल का यू माइट बी लूजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, राइट? बट इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी इज वेरी सॉलिड, एंड आई पर्सनली नो, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फॉर द कंपनीज, सो यूएस कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज दे सी अ पोटेंशियल, उनको कुछ दिख रहा है, तो दैट इज व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन के सब कुछ छोड़ छाड़ के यूएस स्टॉक्स में बाय करना शुरू कर दो, कंप्लीटली रॉन्ग, डोंट डू इट। बहुत सारे इंडियन स्टॉक्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? सो मेजोरिटी ऑफ योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो, यू शुड स्टिक टू इंडिया ओनली। बट देयर इज अ कैविएट। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं आई पर्सनली इन्वेस्ट जो मेरे को लगता है शायद इंडिया में नहीं है, फॉर एग्जांपल टेक कंपनीज, राइट? यू विल सी यूएस की टेक कंपनीज का कोई भी अभी मैच नहीं है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द चाइनीज कंपनीज। यू टॉक अबाउट मेटा, you talk about Google, you talk about Microsoft, then Nvidia, you don't have these kind of companies in India as of now. India ka tech is very much into outsourcing business and those what we call IT companies, right? Hardcore tech companies India based जो बहुत ज़्यादा value add कर रहे हो, there are only limited companies. So that is रीजन। अगर कुछ ऐसी आपके पास सिचुएशन है where you want to invest into those tech companies, या कुछ ऐसी कंपनीज में जो आपको इंडिया में एक्सपोजर नहीं मिलता, at that time you can explore, right? But I personally think directly investing into those stocks through apps, उसमें बहुत complex process है and they charges a lot. There are ETFs available in the market, and that is a very simplest approach to
invest in any company out of India, right? So there are tech fund of funds, there are tech ETFs of like Nasdaq tech ETF. You'll search and you'll find a lot of such ETFs or mutual funds, which indirectly invest into those companies, right? So I have personally, just a disclosure, I have personally invested in US tech companies through these mutual funds, and it has given me good returns because of superior returns of Nvidia या Microsoft की वजह से आ रहा है. But don't fall for the trap कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडियन यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, and there are things कि आप इस ऐसे बाय कर सकते हो, फ्रैक्शनल बाय कर सकते हो. I think that's all marketing. Don't fall for it. There might be a few of the sports जो आपको इंडिया में एक्सपोजर नहीं मिलता. You can buy those stocks in Europe or US through ETFs or mutual funds. Rightly said, ETF for the US stock is a good option. मैंने भी कुछ R&D करके किया हुआ है and that's giving Yes, good return. But again, you rightly said कि खुद का R&D करके या कुछ definitely. expert advice लेके invest करें, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे या YouTube या whatever videos वगैरह पे जाके ना करें. So Yes, that is yes, good yes. advice. और इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो हमने बीच में भी बात किया. तो अगेन अगर आपको कुछ उसमें वुड यू लाइक टू गिव एनी एडवाइस कि इज इट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट in gold or silver compared to stock? Definitely. So I'll tell you my story, right? Last year, 2024, March or June, March June के around, निफ्टी जो है 26,000 क्रॉस कर चुका था उस टाइम पे. एंड एज पर मी मेरे को ऐसा लग रहा था अर्निंग्स उतनी नहीं है. सो वी कंपेयर निफ्टी का पीई रेशो कितना चल रहा है, विच सेज के निफ्टी अभी एक्सपेंसिव है, उसकी इतनी वर्थ नहीं है, बट वो एक्सपेंसिव एंड दैट्स अ लाइक अप्रोक्सीमेशन, राइट? तो मैंने वो कंपेयर किया. आई थॉट कि निफ्टी शायद ओवर वैल्यूड है. एट दैट टाइम I started moving out of funds out of Nifty, and I put that fund into gold. you know मेरा आइडिया या मेरा आइडिएशन या मेरा एस्टिमेट इतना था कि ठीक है, गोल्ड में शायद ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा, बट एटलीस्ट जो डाउनफॉल होएगा या मेरी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी, उसमें से जो मैंने प्रॉफिट बनाए हैं वो मेरे सस्टेन रहेंगे, मेरे वापस गिरेंगे नहीं. एंड दैट वर्कड वंडर्स. उसके बाद से गोल्ड हैज गिवन, सिंस आई हैव bought it, has given me 80-90% return since then. I wasn't expecting that much. I told you, my primary reason was to protect my capital, but gold has given me significant returns, way more than what I might have earned from those stocks. So, uh, and this comes to the conclusion, as I told you, capital rotation, right? आप बोलो गोल्ड में करना है, उसमें करना है, यू नीड टू डाइवर्सिफाई, ठीक है, बट यू हैव टू सी कि कब किसमें कितना इन्वेस्ट करना है. यू हैव टू सी, ओके, दिस क्लास लुक अंडर वैल्यूड, दिस क्लास लुक्स ओवर वैल्यूड, और जहां पे आपको लगे ओवर वैल्यूड है, वहां से फंड निकाल के यू हैव टू मूव फंड टुवर्ड्स द अंडर वैल्यूड क्लास. ऐसा नहीं, आई डोंट हैव एक्सपोजर टू इक्विटी, आई स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग बिग एक्सपोजर टू इक्विटी, बट आई हैव मूव्ड अ लॉट ऑफ फंड्स टुवर्ड्स गोल्ड, राइट? एंड एट द सेम टाइम अभी इसी साल से मैंने सिल्वर खरीदना भी शुरू किया था, एंड इट हैज गिवन मी गुड रिटर्न सो फार, राइट? अभी गोल्ड और सिल्वर पे बात करते हैं, बहुत बढ़ चुका है. पीपल से कि बहुत बड़ा हुआ है, अब तो ये बेच देना चाहिए, गोल्ड जो है वो 1 लाख गिर जाएगा, इतना आ जाएगा. आई आई हेयर दैट बज अ लॉट. मेरे को ऐसा लगता है, इफ वी टॉक अबाउट इट, मैं ब्रीफली टच अपॉन करता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर का जो गेम है वो हम नहीं प्ले कर रहे. दैट इज बीइंग प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक्स. सो सारा जो गोल्ड एक्वायर हो रहा है वो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स एक्वायर कर रहे हैं. लेट इट बी इंडिया का आरबीआई, चाइना का सेंट्रल बैंक, बिकॉज हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें यूएसडी का ही मेन रिजर्व है जिसको हमने रखा हुआ है. गोल्ड परसेंटेज इज 5%, 7%. बट एट द सेम टाइम अगर हम यूएस के रिजर्व्स देखें या यूके के रिजर्व्स देखें, दे हैव अराउंड 50%, 60% रिजर्व्स इनटू गोल्ड. तो उन्होंने गोल्ड स्टोर कर रखा है. एंड जस्ट टू एंटिसिपेट, वर्ल्ड इज एंटिसिपेटिंग कि करेंसी वॉर हो सकता है, डी डॉलराइजेशन हो सकता है, यूएसडी को रिप्लेस करके देयर माइट बी डिमांड कि हम कोई और करेंसी को आगे लेके जाए, राइट? तो उस टाइम पे दैट इज द रीजन, उस पैनिक में आने की वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड एक्वायर कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, मेरे को पर्सनली माय ओपिनियन, कि जब तक सेंट्रल बैंक्स बाय करते रहेंगे इन द लॉन्ग टर्म, गोल्ड के प्राइस बढ़ते रहेंगे. यू वी माइट नॉट हैव सीन द हाई एज ऑफ नाउ, राइट? इट माइट बी जस्ट द बिगिनिंग. लोगों को चाहे जितना मर्जी लगे, बट गोल्ड इज, इट माइट हैव स्टार्टेड जस्ट इट्स जर्नी, राइट? अगर वो करेंसी वॉर वाली सिचुएशन आती है. एंड व्हेन इट कम्स टू सिल्वर, तो सिल्वर का एक मिक्स सा रोल है. सो इट इज सीन एज अ सेफ हेवन एसेट, सेंट्रल बैंक्स भी खरीदते हैं अपने उसको करने के लिए, बट इट हैज इंडस्ट्रियल डिमांड एज वेल.
So approximately 70% of silver demand is coming from the industry. जो हम ईवीज बन रहे हैं, सोलर पैनल्स बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही हैं, हर किसी में सिल्वर लग रहा है। एंड 70% ऑफ ग्लोबल सिल्वर डिमांड इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज जहाँ पे वो कंज्यूम हो जाता है। सो True. सिल्वर का प्ले इज वेरी डिफरेंट। इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। तो दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा है एज और ऑफ डेट। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में फ्लक्चुएशंस कम आता है, बट सिल्वर में तो मतलब एकदम से बहुत ही फ्लक्चुएशंस आता है। उसका क्या रीजन डेफिनेटली, है? डेफिनेटली एंड एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट यही बोलने वाला था कि जितना मैंने बोला इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर देगा। सो सिल्वर एक बहुत फ्लक्चुएटिंग एसेट है बिकॉज इट्स अ कमोडिटी और इसका कमोडिटी साइकिल है। अगर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम पे इसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर टाइम्स जब इंडस्ट्री की डिमांड गिरी भी है तो सिल्वर 80% तक करेक्ट भी हो जाता है, राइट। सो वी आर सीइंग कि जो अभी सिल्वर हैज क्रॉस $50 का प्राइस ग्लोबल मार्केट में, एंड इट वाज एंटिसिपेटेड कि जैसे $50 करेगा ये $70 हो जाएगा। एंड आई विल टेल यू विद इन अ मंथ अभी ये $70 के आसपास पहुंच चुका है। दैट इज अराउंड 30% रिटर्न विद इन अ मंथ इन सिल्वर दैट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ। बट जो $50 का प्राइस था दैट वाज सेम प्राइस इन 1980 एंड 2010, राइट। सो 1980 में भी सिल्वर $50 था, 2010 में भी सिल्वर $50 था। उसको टच किया देन वो 80% तक करेक्ट हो चुका था एंड वो $20 वापस हो जाता है। सो इट्स अ हाईली फ्लक्चुएटिंग एंड हाईली रिस्की मेटल एक्चुअली। तो इसलिए सिल्वर इज आई कैन कंसीडर हाई रिस्क हाई रिटर्न। अभी वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है देयर, ऐसा कभी भी हो सकता है कि सिल्वर आपको लगे 60% करेक्ट हो गया बिकॉज उसकी डिमांड कम हो गई या ग्लोबल फैक्टर्स कुछ चेंज हो गए। सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि क्या हो रहा है। बट सिल्वर एज ऑफ नाउ इज लाइक एक्सीडिंग एवरी एक्सपेक्टेशंस। एट द सेम टाइम जो गोल्ड है वो बहुत बड़ा है, बट गोल्ड का जो डाउन साइड है दैट इज लिमिटेड। देयर हिस्टोरिकली हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि गोल्ड 60% करेक्ट हो जाए, 70% करेक्ट हो जाए। आई थिंक पूरी दुनिया तबाही मचा देगी अगर गोल्ड इतना करेक्ट होता है तो गोल्ड इज अ कंपेरेटिवली सेफर एसेट, तो उसमें रिटर्न्स भी सेफ आएंगी। बट सिल्वर इज अ हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट, राइट। बट अभी दोनों अपने बूम पे हैं। एंड वन सिंपल पॉइंट, डोंट कंसीडर के बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत महंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। आई पर्सनली थिंक दिस माइट बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू सी अहेड। एंड यू एडवाइस कि फिजिकल ये ट्रेडिंग करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में, या फिर जो ऑनलाइन ऑप्शंस आते हैं उसमें करना चाहिए, विच इज मोर बेटर एंड सेफर ऑप्शन? I personally think ETFs are better, right? Because I'm more from that world, just जो डीमैट से ज्यादा रहते हैं, right? So I think for people like salaried employees हैं, जिनका already डीमैट में investment है, so I think I prefer कि gold ETF, silver ETF खरीदे because obviously you have to trust कि कौन सा अच्छा ETF है, कि उन कितना further there might be case कि वो आपसे गोल्ड ETF हो बट फर्दर दे आर ओनली इन्वेस्टिंग 90% इनटू गोल्ड, तो आपका 10% इज स्टिल इन कैश। तो हैव टू सी कि कौन कितना एक्सपेंस रेशियो है, कितना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कितना ट्रैकिंग एरर एक टर्म होता है वो कितना है, एंड यू हैव टू चूज एन ईटीएफ। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस बिकॉज जब आप उसको खरीदते हो यू कैन प्लेज एंड यू कैन टेक लिमिट अगेंस्ट दैट, राइट। सो एज सिंपल एज दैट, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपके पास एक एसेट है, अगर आप उसको मार्जिन प्लेजिंग कर देते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट लिमिट मिल सकती है दैट यू कैन यूज फॉर ट्रेडिंग, तो आपको अलग से पैसे नहीं डालने पड़ते। So that is a very big advantage that is associated with the buying ETFs or silver ETFs. बाकी आप फिजिकल भी ले सकते हो, उसका जो रिटर्न है वो सेम रहता है, बट देयर आर इश्यूज विद सिक्योरिटी, देन यू हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट। जब आप फिजिकल करते हो मेन मेरे को कंसर्न उसका सिक्योरिटी का रहता है, आप उसको कहाँ रखोगे, देयर आर चांसेस वो चोरी हो हाँ, जाए, वो कुछ एक हो जाए, टेंशन राइट। रह जाता है, बराबर है। True. एंड यू माइट गेट, शायद आपको प्योर ना मिले, राइट, यू माइट गेट फ्रॉडेड कि आपको नकली दे दे। दैट इज माय पर्सनल प्रेफरेंस। बाकी एवरीबody हैज टू सी व्हाट वर्क्स फॉर देम। True, true, true. So that was amazing. That was amazing. So few of the last questions, and but very important question, that if I know I'm knowing nothing, मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है. So what is one mantra to invest in stock market? एंड दैट इज माय फेवरेट, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली। तो इस पे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आई पर्सनली सीन के यार कुछ समझ नहीं आता, कुछ नॉलेज नहीं है, राइट। सो primary thing is have knowledge, understand it, maybe take advice and invest properly. But let's flip the coin and see कि हमारे पास knowledge नहीं है ना ही time है, give me one thing, कहाँ invest करें, right? So I won't give you a single stock, ऐसा कुछ भी नहीं है।
there's a strategy I call silver bullet strategy, right? And I used to follow when I don't have that much of knowledge or that much of time. सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी, और हिंदी में बोले तो रामबाण इलाज, राइट, किसी भी चीज का कि और कुछ समझ नहीं आता तो ये कर लो. सो इसकी एक स्टोरी है. आई यूज टू वर्क फॉर प्राइवेट इक्विटी फर्म थ्रू अ कंपनी. तो उस टाइम पे वो इन्वेस्ट करते थे कई स्टॉक्स में, मेनली प्राइवेट कंपनीज बट कुछ पब्लिक कंपनीज में भी. आई एम टेलिंग यू, वो पूरा एक प्रोसेस होता था. इट हैज टू कम से कम 10-20 जगह प्रेजेंट होके वो डिसाइड होता था कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. वो एक एक चीज को एनालाइज करते थे, मॉडल्स बनाते थे, एंड देन दे इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, राइट. एंड देयर इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बाय एनएससी बीएससी कि अगर कोई भी स्टेक एक्वायर करेगा तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वो कंपनी, एनएससी बीएससी में, कि हमने ये स्टेक एक्वायर किया. दैट इज अ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सो वो इतना रिसर्च करने के बाद उसको बाय करते थे, एंड देन वो एनएससी बीएससी को बताते थे हमने ये बाय किया है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन पब्लिक. सो मेरा सिंपल सा मंत्रा ये है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कीप अ ट्रैक वेयर द बिग मनी इज फ्लोइंग. चाहे वो एफआईआईज है, डीआईआईज है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, जहां पे बड़े लोग पैसा लगा रहे हैं. अगर बिकॉज ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उनको बताना पड़ता है, दे डोंट वांट टू, दे हैव टू, राइट. तो जब आप वहां पे वो कर रहे हो, अब आपको पता लग गया है कि उन्होंने इसमें स्टेक एक्वायर किया है, तो दे आर नॉट देयर फॉर 5% और 10% रिटर्न, कि उस दिन स्टॉक 5% बढ़ गया. दे आर देयर फॉर अ बिगर गेम. उन्होंने पूरा रिसर्च करके वो बनाए हुए हैं मॉडल्स. सो दैट इज द इजीएस्ट ट्रिक. सिंपली फॉलो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी वहां पैसा डाल दो. You'll end up earning better money than random investing. That is my surety on that, right? And that is a trick that I have followed. In 2017, there was a company called Himadri Specialty Chemical. I didn't have knowledge at that time, 2016, 2017. So I followed that. One of the private equity firm invested there. I bought a stake, and I ended up earning like big from that particular stock. And I have repeated Uh, that a lot. So that's a basic, simple level trick that can render you in a better place than random investing. wow, that's amazing. Great. That was a golden tip for our audience, I can say. So, your final word, your final tips or final takeaways for our audience. So final word is, don't afraid from the market. Don't fear of the market कि market में डर लग रहा है, इन्वेस्ट नहीं करना. मार्केट इज देयर. लोगों को लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जब आप एक्चुअल समझने लगते हो, इट्स वेरी इजी. इट्स अ वेरी बेसिक गेम, एंड यू मस्ट अग्री, राइट. जितना मैंने बोला है, तो मैंने बहुत फंडामेंटल लेवल पर बेसिक चीजों से समझाई है चीजें क्या होता है, एंड दैट इज हाउ आई इन्वेस्ट, राइट. सो डोंट फियर मार्केट, एंड डोंट लेट योर इमोशंस क्रॉल इनटू योर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी. फोमो आता है लोगों को, अरे यार सब बाय कर रहे हैं, मैं भी कर लूं. डोंट लेट इट डू. बी रैशनल. हर चीज को समझो, समझते रहो कैसे करना है. इवॉल्व विद इट. डोंट स्टिक टू कि मैंने ये स्टॉक बाय कर लिया, अब मैं लाइफ टाइम यही रहूंगा. देयर इज नथिंग लाइक इट. कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, हम भी इन्वेस्ट करने के बाद लॉस खा के सीखते हैं कि अरे दिस इज समथिंग रॉन्ग वी हैव डन, एंड accept your mistake and move on. Don't let any emotion fool you. Start as early as you can, and there's a way ahead to go. Learn from your mistakes and move on. Keep, Definitely. yeah, that's a takeaway for our audience. Thank you so much, Akashdeep. That was amazing. काफी कुछ सीखने को, काफी कुछ समझने को मिला, and just loved it. And I would love to have a detailed podcast on the uh, specific topics of stock market in the coming days. So looking forward to. Thank you for your time, and thank you for sharing your real life experience, Akash. Thank you so much. Glad I could help. Yes, so audience, I'm sure you would have enjoyed. काफी कुछ समझने को, काफी कुछ जानने को मिला होगा आपको. सो बस ऐसे ही जुड़े रहिए. Stay tuned. Follow us. Subscribe our YouTube channel, Vipul the Wonderful. Press the bell icon to get the regular updates. And हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे, and they'll share their real life experience. So stay tuned, follow us, and do share this podcast with your friends and family, your network, so that उनको भी ये knowledge का, ये जो guidance है उसका benefit मिल सके. So this session was powered by Post Resume. You can visit our website shown here to connect with us and to get our support in your career journey, to get our support in your talent acquisitions, manpower search for your organization. So बस मिलते हैं next podcast में.
टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड जुड़े रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल पे जो दूसरे वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।